Students, we are doing arbitrary series. Last time we discussed some numerical based on the important result, that is Cauchy product theorem and Abel's theorem. So today also we will discuss numerical based on Abel's theorem as well as Cauchy theorem. So if first numerical, if for modulus of x less than 1, the series summation an 1 0 to infinity x to the power n is absolutely convergent. स्टूडेंट जहाँ पे absolutely convergent का concept आ जाता है वहाँ we will use Cauchy product theorem. What is Cauchy product theorem? If summation an and summation bn are absolutely convergent series, then summation cn is also absolutely convergent and converges to summation an into summation bn. So this is what we have get from Cauchy product theorem. So it is absolutely convergent given है to ax. So ये यहाँ पे summation an और x to the power n की वैल्यू क्या है? It is absolutely convergent to ax. Then show that 1 minus x to the power minus 1 into ax is equal to summation n0 to infinity x to the power n into sn, where sn is a0 to an का sum. अब student, this is cn our, क्योंकि हमें पता है कॉशी प्रोडक्ट थ्योरम से समीशन सी एन इज इक्वल टू समीशन ए एन इंटू समीशन बी एन. सो जहाँ पे समीशन ए एन कन्वर्ज कर रही है दैट इज़ गिवन टू यू, दैट इज़ ए एक्स, और बी एन जो कन्वर्ज कर रही है वो है बी एन किसके इक्वल है? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर माइनस 1. सो ये सीरीज़ आपको समीशन बी एन के इक्वल दी हुई है और ये सीरीज़ दी है समीशन ए एन के. एक सीरीज़ ये है और एक सीरीज़ ये है, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज़ इक्वल टू समीशन सी एन. सो हमने प्रूव करना है दिस इज समीशन सी एन, बट उससे पहले हमें ये तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दी हुई है, हमने इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है. सो द समीशन ए एन, अगर हम इसकी बात करें तो इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर सो ऑन. इसको अगर हम ओपन करें तो दिस इज सिमिलर टू दिस. सो दिस इज समीशन एक्स टू द पावर एन. सो दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था दिस कॉशी थ्योरम, हमने कॉशी रूट टेस्ट यहाँ पे लगाया था एंड वी हैव प्रूव दैट इट इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1. सिमिलर प्रूफ आपने लिखना है इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए एज वी डिड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. क्लियर? सो आपके पास ये आ जाएगा दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1 एंड कन्वर्जेस टू दिस. सो ये आपके पास अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो यू विल गेट दिस सीरीज. क्लियर? सो हमारे पास समीशन, ये जो आपके पास समीशन ए एन है दिस इज इक्वल टू दिस सीरीज़. ये हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन किया था उसमें कंप्लीटली डिस्कस किया था हाउ इट इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर मॉडुलस एक्स लेस देन 1. Now another series is summation bn which is equal to summation n0 to infinity xn. It is given to us that it is absolutely convergent to sum ax. Therefore the Cauchy product cn converges, absolutely convergent for the same modulus of x less than 1 and converges to summation an into summation bn. And so what is summation an n0 to infinity? 1 minus x to the power minus 1. And what is summation bn n0 to infinity? It is ax. Now it is, we have to calculate summation cn n0 to infinity. So let us now write cn nth term. So it is 0 से स्टार्ट हो रही है a0 bn a1 bn माइनस 1 a2 bn माइनस 2 एंड सो ऑन an तक, और फिर b का रिवर्स an b0 an माइनस 1 b1 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन. सो लास्ट में bn. पुट द वैल्यू ऑफ a0 विच इज़ 1. वट इज़ bn? bn इज an x टू द पावर n. What is bn minus 1? It is an minus 1 x to the power n minus 1. So what is a1? a1 is x. What is a2? a2 is x square. And what is bn minus 2? a to the power a into n to the n minus 2 x to the power n minus 2. And what is an? an is again x to the power n. And what is b0? a0 x to the power 0. So it is x to the power n common, और सेकेंड टर्म में भी एक्स टू द पावर एन कॉमन, थर्ड टर्म में भी एक्स टू द पावर एन कॉमन. सो इन सारी टर्म्स में से एक्स टू द पावर एन कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ गया a0 an माइनस 2 an माइनस 1 an. सो एक्स टू द पावर एन 0. सो इट इज़ a0 से an. सो वट इज़ दिस? दिस इज xn. दिस इज sn. सो देयरफॉर वी हैव
1 minus x to the power minus 1, 1 minus x to the power minus 1 an, summation bn is ax is equal to summation n0 to infinity xn sn. ठीक है, अब इसका सेकेंड रिजल्ट है show that, deduce that n plus 1 to the power xn is equal to 1 minus x to the power minus 2. So how will we deduce? अब अगर हम इसको देखें sn को, यहाँ पे अगर हम an 1 डाल दें फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n, तो a0 1 1 2 सारे 1 हो जाएंगे, और जब आप 1 1 1 1 को ऐड करोगे कितनी टर्म्स हैं, ये 0 से लेके n तक टर्म है, तो दे आर n प्लस 1. सो ऐड करके क्या आ जाएगा, n प्लस 1. सो इट मीन्स यहाँ से हमें एक हिंट मिल रहा है दैट वी हैव टू पुट an एज 1 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n. तो अगर हम an को 1 डाल दें फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n, तो आपके पास ये जो दूसरी सीरीज़ है ये भी क्या बन जाएगी, समीशन xn, और ये वाली जो सीरीज़ है ये भी क्या है, समीशन xn. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 2, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ax की जगह आप क्या डालोगे, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1. सो हिंट क्या है इसमें, पुट एक्स ए एन एज 1 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n. सो एस एन आ गया n प्लस 1, और आपके पास ए एक्स क्या आ गया, ए एन 1 डाल दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर n. सो इट इज़ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, सो इट इज़ 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1. सो इट इज़ x टू द पावर n, एस एन की वैल्यू n प्लस 1, और यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1. सो वी हैव 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू समीशन n0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n इंटू n प्लस 1. नेक्स्ट इज इफ टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू, ये टेंजेंट इनवर्स x की एक्सपेंशन है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5 बाई 5 एंड सो ऑन. प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर, इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस सीरीज. इसका मतलब ये है कि समीशन ए एन भी यही है और समीशन बी एन भी यही है, और समीशन सी एन हमने ये प्रूव करना है. ठीक है, सो आपने इन दोनों को इक्वल करना है. इट मीन्स दैट अब यहाँ पे हम इसकी या तो कन्वर्जेंस, या तो हम यहाँ पे एबल्स टेस्ट लगाएंगे, या हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉशीज थ्योरम, एबल्स थ्योरम या फिर कॉशीज थ्योरम. सो अगर हम आगे इस क्वेश्चन को पढ़ें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो शो दैट द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1 एंड कन्वर्जेंट इफ एक्स इज इक्वल टू 1. सो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हमने देनी है, तो लेट अस नाउ अप्लाई कॉशीज थ्योरम. सो हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पहले समीशन ए एन और समीशन बी एन की निकालनी है, देन समीशन सी एन इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज एंड इज इक्वल टू समीशन ए एन इंटू समीशन बी एन. क्लियर. और हमने क्या करना है, इट इज़ कन्वर्जेंट, पहले तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, फिर कन्वर्जेंट इफ एक्स इज इक्वल टू 1. सो ये वाला हम केस बाद में लेंगे, पहले लेट अस टेक विद मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1. सो समीशन ऑफ ए एन एंड समीशन ऑफ बी एन बोथ आर इक्वल, सो दे आर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5 बाई 5 माइनस सो ऑन माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 2n प्लस 1. सो लेट अस टेक मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए एन आपके पास क्या आएगा, दिस इज मॉडुलस ऑफ एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1. मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस 1 इज, यहाँ पे n की जगह n प्लस 1 डालोगे तो यू विल गेट 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 3. सो मॉडुलस ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 रेशो टेस्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, डिलैम्बर्ट रेशो टेस्ट. सो जब हम इसका मॉडुलस ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 लेंगे तो यू हैव 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 1 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर. सो लेट अस टेक लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी. सो व्हाट यू गेट 2n कॉमन, यहाँ से ऊपर से 2n कॉमन नीचे, सो व्हाट यू गेट 1 प्लस 3 अपॉन 2n 1 प्लस 1 अपॉन 2n 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर. सो इट इज़ 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर. So by D'Alembert ratio test we have summation modulus an is convergent if modulus, अब रेशो टेस्ट में ये लिमिट जब ग्रेटर देन 1 होगी तब ये कन्वर्जेंट होगा, और जब लेस देन 1 होगी तो डाइवर्जेंट होगा. बट वी वांट टू प्रूव फॉर, we want to discuss for modulus of x less than 1. So modulus of x less than 1 के लिए हमने नेचर चेक करना है. So it is convergent whenever 1 upon modulus of x square is greater than 1. So this implies modulus of x square is less than 1, which further implies modulus of x is less than 1. So therefore we have modulus of an is convergent for
modulus of x less than 1. This implies that summation an is absolutely convergent for modulus of x less than 1. तो अगर आपके पास समीशन an एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया, समीशन bn जो इसी के इक्वल है वो भी क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, एंड इट विल बी लेस देन 1. Therefore, for less than 1, their Cauchy product summation Cn is also absolutely convergent and will be equal to summation An into summation Bn. So, let us now calculate Cn. So, Cn is A0, Bn, A1, Bn minus 1 up to An, B0. फिर इससे रिवर्स जाएंगे तो up to Bn. So, let us now put the values. A0 आपके पास x है, Bn as it is, A1 is minus x by 3, Bn minus 1 is this, and so on. So an is this and b0 is x. So जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, this is x to the power 2n plus 2, this is x to the power, ये 3 यहाँ पे कंबाइन होके 2n plus 2, this is x to the power 2n plus 2. So x to the power 2n plus 2 कॉमन, और x minus 1 to the power n, यहाँ पे भी minus 1 to the power n, ये minus 1 और ये minus 1 to the power n. So आपके पास कॉमन आ जाएगा minus 1 to the power n, x to the power 2n plus 1 upon 1, और साथ में आपके पास सीरीज आ रही है 1 into 2n plus 1, 1 by 3 into 2n minus 1, 5 into 2n minus 3 up to 1 into 2n plus 1. अब आप देखो आपने प्रूव क्या करना है, समीशन Cn को किसके इक्वल प्रूव करना है. यहाँ पे समीशन Cn ये तो सारा कुछ सेम है, 1 by 3 1 upon 2n plus 1, बट यहाँ पे 2n plus 2 का फैक्टर है. इट मीन्स आपने 2n plus 2 का फैक्टर लाना है, 2n plus 2 से मल्टीप्लाई और 2n plus 2 से डिवाइड. सो लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2n plus 2. सो आपने क्या किया, 2n plus 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2n plus 2 से डिवाइड कर दिया. सो व्हाट वी गेट, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 plus 1 upon 2n plus 1. इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 by 3 plus 1 upon 2n minus 1. इट इज़ 1 by 5 2n minus 3, और लास्ट में 1 plus 1 upon 2n plus 1. क्लियर. सो अब ये जो लास्ट में है, इससे पहली वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी, 1 by 5 1 plus 1 upon 2n minus 3, सॉरी 1 by 3 plus 1 upon 2n minus 1, फिर उससे नेक्स्ट ये. इट मीन्स ये सारी जो टर्म्स हैं ये सारी दो बार रिपीट हो रही हैं. सो इट इज़ ट्वाइस ऑफ, दिस इज ट्वाइस ऑफ 1, twice of 2, 1 upon 2 by 3, twice of 1 by 5 मतलब 2 by 5, and twice of 2 by, this is 2 by 2n minus 3, 2 upon 2n minus 1, 2 upon 2n plus 1, 2 कॉमन ले लो. सो दिस इज़ व्हाट यू वांट. सो यही आपने प्रूव करना था, दैट समीशन Cn इज इक्वल टू दिस. सो यही, दिस इज समीशन Cn इज इक्वल टू दिस. सो यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया है दैट समीशन Cn इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड इक्वल टू दिस. ये हमारा प्रूव हो गया. अब हमने ये प्रूव करना है ये जो सीरीज़ है इज़ कन्वर्जेंट. ये जो सीरीज़ आपके पास आपको दिख रही है, ये जो सीरीज़, दिस इज़ द सीरीज़, ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है फॉर x इक्वल टू 1. ठीक है, ये तो प्रूव कर दिया कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है. अब हमने प्रूव करना है दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर x इक्वल टू 1. सो लेट अस टेक x इक्वल टू 1. सो यहाँ तक हमने कर दिया है. दिस इज फॉर x लेस देन 1 वी हैव थ्रू. सो फॉर x1 वी हैव x इक्वल टू 1. अब जब हम x इक्वल टू 1 यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये वाला 1, ये x चला जाएगा. दिस सीरीज इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n, 2n प्लस 2, 1 प्लस 1 by 3, 1 by 5, 1 प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1. तो समीशन Cn ये हो गया. अब इसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है. तो ये क्या है, ये आपके पास कौन सी सीरीज़ है, ये आपके पास ये आपके पास अल्टरनेट सीरीज़ है. और अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए वी हैव टू प्रूव लेबनीज़ टेस्ट हियर. लेबनीज़ टेस्ट के लिए ये वाली जो टर्म है आपके पास, ये जो टर्म है दिस टर्म, इस टर्म को हमने दो कंडीशंस से सेटिस्फाई करवाना है. फर्स्ट कंडीशन इज दैट दिस विल कन्वर्ज टू जीरो एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, एंड सेकंड कंडीशन इज दैट अगर हम इसको मॉडुलस ऑफ Cn ले लें, क्योंकि Cn तो नेगेटिव साइन के साथ है, मॉड ले लेंगे तो सिर्फ ये पॉजिटिव वाली टर्म्स ही हम कंसीडर कर रहे हैं. दिस इज मॉडुलस ऑफ Cn. तो ये हमने दिखाना है मॉडुलस ऑफ Cn इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ Cn प्लस 1, और एक हमने दिखाना है मॉडुलस, और एक हमने दिखाना है लिमिट ऑफ Cn एन अप्रोचेज इन्फिनिटी इज 0, मॉडुलस ऑफ Cn. सो ये दो चीज़ें अगर हमने दिखा दी तो हमारी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी फॉर x इक्वल टू 1 के लिए. ठीक है. सो फॉर x इक्वल टू 1 के लिए लेट अस
टेक सी एन एज दिस, सो सी एन आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 2, एन से मल्टीप्लाई और एन से डिवाइड किया हमने, यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई और एन से डिवाइड किया हमने, ठीक है। सो आपके पास अब यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया हमने, बिकॉज वी वॉन्ट टू इम्प्लाई कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। अगर मैं ए एन को ले लूँ 1/n, ठीक है, सो ये क्या है, दिस इज मीन ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक है, दिस इज मीन ऑफ, दिस इज सम ऑफ a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस सो ऑन 1/a ऑफ 2n प्लस 1, n टर्म्स ही हैं बट और टर्म्स हैं, डिवाइड बाय n। सो इनकी लिमिट भी कहाँ अप्रोच करेगी, जहाँ पे ए एन की लिमिट अप्रोच कर रही थी, तो ए एन जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा था, तो दिस होल टर्म विल अप्रोच टू जीरो। अब आपके पास टर्म कौन सी रह गई, 2n/2n प्लस 1, n अगर कॉमन ले ले तो दिस इज फाइनाइट टर्म इनटू जीरो, सो दैट विल अप्रोच टू जीरो एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो दिस इज बाय कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। अब आपने प्रूव करना है सी एन इज ग्रेटर देन सी एन प्लस 1, सो लेट अस नाउ टेक डिफरेंस ऑफ मॉडुलस सी एन प्लस 1 विथ सी एन। सो सी एन प्लस 1 माइनस सी एन क्या होगा, दिस इज सी एन प्लस 1 एंड दिस इज सी एन, ठीक है। अब आप इसको देखो, यहाँ पे ये वाली जो टर्म 2n प्लस 1 तक है ये कॉमन आ जाएगी, दिस इज कॉमन, ठीक है। सो इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा 2n प्लस 2, और आपके पास 2n प्लस 4 दिस प्लस क्या, अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन प्लस 2 इंटू, इसको ओपन कर रहे हैं फर्स्ट टर्म को, प्लस 2 इंटू 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 4, और ये एज इट इज, ठीक है। अब इन दोनों में से ये वाली टर्म कॉमन है, इनको कॉमन ले लो, सो आपके पास कॉमन आ गई, दिस इज 2/2n प्लस 4 माइनस 2/2n प्लस 2। सो जब आपने सब्ट्रैक्ट किया दिस इज -4 अपॉन दिस, सो आगे हमने 2 कॉमन ले लिया, नीचे से 2n प्लस 2 यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ से आपने कॉमन ले लिया 2, दिस इज 2n plus 4, this is 2n plus 2, so when you take this is -4, so it is 2n plus 2 का whole square, and this is 2n plus 3, 2n plus 4, so it is, so we have, यहाँ पे कॉमन नहीं लिया हमने, यहाँ पे हमने क्या करना है, we have 2n plus 2 is greater than, is always less than 2n plus 4 for all values of n। सो हम इसका रिवर्स कर देंगे, 2n प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1/2n प्लस 4, बट जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ -2n प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, इज ऑलवेज लेस देन -1/2n प्लस 4। सो आपके पास ये 2n प्लस 4 की जगह मैं क्या लिखूंगी, दिस इज लेस देन, यहाँ लेस देन का साइन आ गया, सो दिस इज लेस देन 1/2n प्लस 2, क्लियर। सो -1/2n प्लस 4 इज लेस देन दिस, सो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, सो -2n प्लस 2 इज ऑलवेज लेस देन -1/2n प्लस 4, तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया आपके पास, एंड दिस एज इट इज। नाउ वी विल गेट व्हाट वी गेट हेयर, अब यहाँ पे हमने रिलेशन लगाया, 2n प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2n प्लस 2, सो 1/2n प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2n प्लस 3, क्लियर। सो 1/2n प्लस 1, ये अब यहाँ से ये जो 2n प्लस 3 है इसकी जगह मैंने क्या लिखना है, 2n प्लस 2, सो यहाँ पे फिर से लेस का साइन आ गया, यहाँ पे भी लेस का साइन था, सो इट इज़ लेस देन 2n प्लस 2, और ये 2n प्लस 4 इज ऑल्सो लेस देन 2n प्लस 2, सो यहाँ पे आ गया 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो नाउ लेस का साइन है यहाँ पे, और 2n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 2 होल स्क्वायर कॉमन, तो व्हाट विल यू गेट, दिस एज इट इज, और यहाँ पे -1, सो ये कैंसिल हो गया, दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, 2n प्लस 2 इज पॉजिटिव, बट हेयर इट इज नेगेटिव, सो दिस टर्म इज लेस देन 0। तो अगर ये टर्म लेस देन 0 होगी तो इसका मतलब क्या है, cn प्लस 1 माइनस cn जो है उसमें cn जो है वो ग्रेटर होगा cn प्लस 1 से, सो cn इज ऑलवेज ग्रेटर देन cn प्लस 1, सो बाय लेबनीज टेस्ट देयरफॉर दिस समीशन cn इज कन्वर्जेस। सो हमने यही प्रूव करना था, एक तो हमने ये प्रूव करना था दिस इज कन्वर्जेंट फॉर x इक्वल टू 1, और दूसरा हमने प्रूव करना था दिस समीशन cn इज इक्वल टू दिस, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया, और हमने ये दोनों रिजल्ट, नाउ these two results are proved now. So this is all about today's lecture, so thank you for watching the video.